Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 10th on the same platform of the Life Physics Video channel. As we are going to start with the light, and as you know that we have completed some of the lectures, some of the topics of the light in our school itself. And the topics that we covered was reflection and refraction. So we are going to start a general overview of the refraction and we will continue with the our topic जो हम लोगों ने जहाँ तक अब तक finish किया. So let's start with the overview of the refraction. So what is the refraction? That whenever light travels from what? From one medium to another medium. So we have first medium, we have another second medium. So जब भी आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा, it deviates from its path, वो अपने रास्ते से भटक जाती है. Means whenever the light travels from one medium to another medium, it gets deviated from its path, and this phenomena is called as refraction. यानी जब आप अपने रास्ते से भटक जाओ, तो उस phenomena को आप लोग क्या बुलाएंगे? Refraction. But there are two cases. Whenever the light travels from what? Rare to denser medium. तो जब भी आपका लाइट रेयर से डेंसर जाएगा, it would bend towards the normal, and when the light travels from what? Denser to rare, it will go away from normal. Okay, ये टॉपिक हमारे रिफ्रैक्शन के हम लोगों ने दिए. Okay, which medium is rare and which medium is denser? So to represent the character of the medium, we use a word called as refractive index. हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो भी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय v, वेयर v रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. तो ये चीजें हम लोगों ने देखी है और यही चीजें अब हमें देखनी है. तो ये चीज आप जानते हैं कि जब भी हम लोग रेयर से डेंसर जाएंगे, बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मीडियम. ओके, विद दैट नोट और विद दिस पॉइंट देयर आर सम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम लोगों ने डील किए. तो हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं. The topic like real and observed depth, real depth and observed depth, and the most important हम लोगों ने TIR को भी finish किया है, total internal reflection. Now we are going to enter into the one of the most important part of the refraction जो आपके लिए सबसे ज़्यादा important है, and that part is lenses. So today we are going to start with the lenses. So what are the lenses? So lenses, it is the combination of two spherical surfaces of any given medium which either converge or diverge the light ray. So lens क्या है? It is the combination of two spherical यानी curved surfaces. दो curved surfaces का combination है जो किसी भी मीडियम से बना होगा, यानी उनका कुछ ना कुछ मीडियम होगा जो या तो आपकी लाइट रे को कन्वर्ज करेंगे या फिर आपकी लाइट रे को डाइवर्ज करेंगे. फॉर एन एग्जांपल वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इट्स टाइप. सो लेंसेज आर ऑफ टू टाइप. नंबर 1 convex lens and number 2 is concave lens. So similarly like the mirrors, जैसे हमारे पास मिरर्स होते हैं ना, स्फेरिकल मिरर, बट वो क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके उसी मीडियम में कर देते हैं. बट दोनों का काम वही है. आपका जो कनकेव मिरर है वो लाइट को कन्वर्ज करता है और जो आपका कन्वेक्स मिरर है वो आपकी लाइट को डाइवर्ज करता है. बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है. जो हमारा कन्वेक्स लेंस है जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा,
मींस दो स्फेरिकल कन्वेक्स सरफेसेस ले लिए हम लोगों ने, एक सरफेस और दूसरा सरफेस। जब भी लाइट इससे पास होगा, whenever the light will pass through it will converge the light ray। वो लाइट रे को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, लाइट रे को एक जगह मिलाने की कोशिश करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस कन्वर्ज लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। इस कन्वेक्स लेंस को हम लोग जनरली क्या बुलाते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बुलाते हैं। बट अगर आपसे मैं मिरर के बारे में बात करूं तो मिरर में कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? कनकेव। इस बात को याद रखेंगे प्लीज। In mirror, the concave mirror is called as converging, whereas convex mirror was called as diverging. But here, यहाँ पे convex lens को आप converging बुलाएंगे। Similarly, concave surface, concave mirror ऐसे बनाते थे, तो ऐसे ही हम लोग अब दो surfaces लेंगे, दोनों concave हैं, और दोनों concave surfaces से जब मिलके बनाएंगे, तो जब light पास होगी, तो वो उसे diverge करेगा। क्या करेगा? उसे डाइवर्ज करेगा। तो ऐसे केस में लाइट कभी भी कन्वर्ज नहीं होगी, लाइट डाइवर्ज होगी, और इस टाइप के लेंस को आप लोग क्या बुलाएंगे? डाइवर्जिंग लेंस। सो डेफिनेटली हमारे पास कितने टाइप के लेंसेज हैं? हमारे पास दो टाइप के लेंसेज हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स जो कन्वेक्स है इस तरीके से, यानी कन्वेक्स फॉर्म में है, उसका काम है लाइट को कन्वर्ज करना, दैट्स व्हाई इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बुलाते हैं। और कनकेव लेंस का काम है लाइट को डाइवर्ज करना, जो कि वो क्या करेगा? वो लाइट को जब भी डाइवर्ज करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग। गॉट दैट पॉइंट? चलिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा भी कि इसने कन्वर्ज ही क्यों किया और इसने डाइवर्ज ही क्यों किया। तो ये चीज मैं आपको एक बार डायग्राम की हेल्प से ट्राई करता हूं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द लेंस एंड द टाइम। ओके, नाउ चलिए मैं आपको समझाता हूं व्हाई द कन्वेक्स इज कन्वर्जिंग एंड व्हाई द कनकेव इज डाइवर्जिंग। अभी के लिए ऐसा क्यों है? ओके, मैं बात कर रहा हूं अभी के लिए। तो देखिए, कन्वेक्स है, आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट लार्ज डायग्राम। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे यहां से जाएगा स्ट्रेट। चलिए, लेंस है, इट इज लेंस एंड यू ऑल नो दैट लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान ले? म्यू जी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू जी? म्यू जी स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? लेंस। ओके, बाहर क्या है? ऑब्वियस सी बात है, लेंस के चारों तरफ क्या होगी? एयर। सो इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और आपकी पुरानी नॉलेज से बता दूं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1, और ये सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 1 से लेस किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। तो बाहर हमारा सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अंदर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये रेयर मीडियम हो गया और अंदर डेंसर मीडियम हो गया। चलिए, लाइट रे गया, तो बताइए आप कहां से कहां जा रहे हैं? फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम यू आर एंटरिंग? सो आप कहां से कहां एंट्री कर रहे हो? आप रेयर से कहां एंट्री कर रहे हो? डेंसर में। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ नॉर्मल बनाएंगे। तो याद करो पुराने कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी कर्व सरफेस से नॉर्मल बनाते हैं तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पहला सरफेस है इसको एक नाम दे देते हैं एक्स ए वाई, और ये जो दूसरा सरफेस है इसको नाम दे दिया एक्स बी वाई। सो सबसे पहले लाइट कौन से सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है? सबसे पहले लाइट एक्स ए वाई पे स्ट्राइक कर रहा है। सो लाइट इज स्ट्राइकिंग ऑन एक्स ए वाई। इट मींस यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो इसका मतलब नॉर्मल ऐसे बनेगा। और रेयर से डेंसर का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेनेवर यू मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर वी विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपको जाना था सीधा और आप लोग बेंड हो जाओगे थोड़े से नॉर्मल की तरफ। डन? ओके, अब पहुंचे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे भी मीडियम बदल रहा है, तो पहले मीडियम P पॉइंट पे बदल रहा था, अब Q पॉइंट पे भी बदल रहा है। अब हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? एक्स बी वाई सरफेस पे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं डेंसर से रेयर। तो नॉर्मल बनाते हैं,
तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगी, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं किस तरफ होगा, कहाँ होगा इसका सेंटर, लेफ्ट की तरफ होगा। अब अगर इसका सेंटर लेफ्ट की तरफ है और आप जा रहे हो डेंसर से रेयर, तो डेंसर से रेयर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, आप नॉर्मल से दूर भागेंगे, और जब हम लोग नॉर्मल से दूर जाएंगे तो हमारी लाइट रे कुछ इस तरीके से जाएगी, और फाइनली क्या बन गया, इमेज। तो देखो लाइट रे जो कि पहले सीधी जा रही थी, तो फर्स्ट सरफेस में उसे थोड़ा सा बेंड किया, जिसके बाद उसे यहाँ जाना चाहिए था, बट सेकंड सरफेस में उसे फिर से बेंड किया, और फाइनली इमेज कहाँ पे जाके बन गई, आई पे। तो देखो लाइट जो पहले सीधा जा रहा था अब बिल्कुल इस तरफ आ गया, तो ये कौन सा नेचर है, कन्वर्ज करना है या डाइवर्ज करना, कैसा बिहेवियर है ये, कन्वर्ज करना। दैट्स व्हाई हम लोग इस कन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस, ये रेयर मीडियम है, तो कौन सा लेंस बुलाते हैं हम लोग, जनरली इसे कन्वर्जिंग लेंस बुलाते हैं। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग। बट ये तभी होगा जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, यानी अंदर डेंसर है और बाहर रेयर है, इस बात को याद रखें। क्लियर है? चलिए ऐसे ही मैं आपको कनकेव के बारे में भी बताता हूं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक कनकेव लेंस है, डन। चलो फिर से वैसे ही करते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं एक्स ए वाई, ये ऐसे ही एक्स बी वाई। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट को लाइट जाएगी इधर, चलो अब अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट आपका इधर गया, जो कि सीधा जाना चाहिए था ऐसे, अभी तो आप नॉर्मल बनाएंगे, तो बताइए एक्स ए वाई का सेंटर किधर होगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, लेफ्ट की तरफ। तो अगर इसका सेंटर लेफ्ट की तरफ है तो यहाँ पे होगा नॉर्मल। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर। बाहर कौन है, देखो ध्यान से, बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, इसका मतलब बाहर रेयर मीडियम है और अंदर डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स, आपको जाना था सीधा, ये डॉटेड डॉटेड बता रहा है कि हम यहाँ जाते, बट हम बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएंगे। एक सेकेंड, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं ताकि क्लैरिफाई हो, ठीक है। तो हम जा रहे थे रेयर से डेंसर, तो रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि इस बार हमारा नॉर्मल ऊपर की तरफ है। पहले नॉर्मल इधर आ रहा था फर्स्ट सरफेस का, क्योंकि कर्व उस तरफ था ना, तो हम इसकी तरफ झुक गए, बेंड टुवर्ड्स, क्योंकि नॉर्मल नीचे था, इस बार नॉर्मल का ऊपर, तो हम उसकी तरफ झुके, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब आइए सेकंड सरफेस पे, यहाँ पे ये हमारा वही पी पॉइंट है, ये हमारा वो क्यू पॉइंट है। तो इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा भाई, इसका नॉर्मल इस तरफ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका सरफेस, इसका कर्वनेस उधर है, तो कर्व है तो सेंटर उधर होगा, और सेंटर उधर है तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। ओके, सो नाउ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से कहां जाएंगे, और दूर जाएंगे, और दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। पहले बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुए तो ऊपर जाना पड़ा, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल है तो फिर से ऊपर जाना पड़ा। तो इसका मतलब लाइट रे जो कि इस तरीके से जाती, अगर ये नहीं होता तो लाइट सीधी जाती, बट लेंस से पास होने के बाद लाइट रे और दूर होते हुए जाती। तो ये कैसा बिहेवियर है, कन्वर्ज करना या फैलाना, डाइवर्ज करना। दिस बिहेवियर इज डाइवर्जिंग। दैट्स व्हाई कनकेव लेंस को हम लोग दूसरा नाम क्या बुलाते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। सो इन द सीबीएसई आपसे कोई भी ये डायग्राम्स नहीं पूछेगा, सीबीएसई में कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि वहां पे रे डायग्राम्स आएंगे जो हम अब प्रैक्टिस करेंगे। बट ये चीजें हमको समझनी जरूरी है कि हम लोग कन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों बुलाते हैं, हम कनकेव को डाइवर्जिंग क्यों बुलाते हैं, क्योंकि पूरा टाइम हम लोग ये सोचने में ही बिता देते हैं, रट लिया कन्वेक्स कन्वर्जिंग है, कनकेव डाइवर्जिंग है, हो गया काम।
हम पूरा समय यही सोचने में लगा देते हैं, बट ये आपको एक कॉन्सेप्ट देगा, ये ट्राई करेगा कि आप ये समझें कि इससे अगर लाइट पास होगी तो वो कन्वर्ज होने की कोशिश करेगी, और अगर इससे लाइट पास होगी तो वो डाइवर्ज होने की कोशिश, यानी कनकेव लेंस लाइट को फैलाता है, कन्वेक्स लेंस लाइट को मिलाता है यानी कन्वर्ज करता है। होप यू गॉट दैट पॉइंट। एक बार डायग्राम्स को ध्यान से देखेंगे, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए, अगर फिर भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके नाउ तो चलिए, ये हमने बनाया लेंस और हमें पता चला लेंस दो तरीके की। तो अब इम्पोर्टेंटली अब वो टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एनटीएससी, जो एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एनटीएससी ओनली, सीबीएसई नहीं, तो हमारे बोर्ड में नहीं है ये टॉपिक, बट फॉर द एनटीएससी ओनली, एंड वी कॉल दिस एज अ लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बुलाएंगे इसे? इसे बुलाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो लेंस को बना के देता है। तो चेक दिस आउट, हमारे पास क्या है? एक कन्वेक्स लेंस है, डन। ये हमारा ऑब्जेक्ट O, ठीक है, हमने इससे लाइट पास की, जो फर्स्ट सरफेस पे गई, फर्स्ट सरफेस ने इसे थोड़ा सा बेंड किया, सेकंड ने इसे फाइनली बेंड किया, और फाइनल इमेज आई पे गई। ओके, तो अब सीधी सी बात है, ये हमारी O की इमेज बनी जैसा हम लोगों ने देखा। अब अगर हम लोग इसी लेंस पर लाइट को पैरेलली फॉल करवाते, इफ द लाइट फॉल्स पैरेलली, अगर लाइट पैरेलल आता तो देखो क्या होगा, पैरेलल आ रही है, ये इसे और कन्वर्ज करेगा और ये इसे फाइनली और ज्यादा कन्वर्ज करेगा। तो यही तो होता है कन्वेक्स लेंस में, पहले फर्स्ट वाला सरफेस थोड़ा सा कन्वर्ज करता है, फिर दूसरा वाला सरफेस और कन्वर्ज करता है। क्यों? वो रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, वही रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब जब लाइट रे पहले पैरेलल आ रही थी और अब कन्वर्ज होते होते फाइनल पॉइंट पे मीट कर गए, तो जिस पॉइंट पे पैरेलल लाइट मीट करती हैं हम उस पॉइंट को क्या बुलाएंगे? फोकस। तो चलिए लेंस मेकर से पहले लेंस के पार्ट्स को पढ़ते हैं, दोनों टॉपिक एक साथ चलेंगे। पार्ट्स ऑफ लेंसेस, तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस। ओके, आप किसी के भी एग्जांपल को ले सकते हैं। तो चलो जल्दी से समझते हैं। तो इस लाइन को क्या बुलाते हैं आप लोग? वी कॉल दिस एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हमारे मिरर में। ओके, दिस O पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। क्या बुलाओगे इसे? ऑप्टिकल सेंटर। ओके, मिरर के सेंटर को हम लोग पोल बुलाते थे क्योंकि वो सरफेस पे होता था। तो ये जो सेंटर है वो सरफेस पे नहीं है, दोनों लेंसेज या दोनों कर्व्स पे यानी लेंस के मिड में है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब लाइट, और जो कि जनरली लेंस के साथ रिलेटेड है उसका सेंटर। गॉट दैट पॉइंट? ओके, अब सीधी सी बात है, अब लाइट, अब कर्व सरफेस कितने हैं आपके पास? दो कर्व है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो दो बन सकते हैं, F डैश C डैश। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने बन सकते हैं? दो बन सकते हैं, क्योंकि कर्व दो है ना। अगर आपके पास दो कर्व होंगे, एक कर्व है, तो अगर हम उसे इमेजिन करें पूरा एक सेंटर बनाने का, तो एक सेंटर इधर बनेगा, तो एक फर्स्ट सरफेस का सेंटर है, एक सेकंड सरफेस का सेंटर है। तो और ये तो आप जानते हैं सेंटर के हाफ, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके हाफ को ही फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो अगर आपके पास दो सेंटर हैं, क्योंकि दो कर्व सरफेस हैं, तो यहाँ पे फोकस भी दो ही होंगे, एक फोकस राइट की तरफ, एक फोकस लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो हमारे पास F का मतलब, और इस C की जगह पे आप लोग 2F भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ फोकस होता है ना सेंटर, और यहाँ पे आप लोग इसे 2F डैश लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा F स्टैंड्स फॉर, F हमारा क्या है? फोकस पॉइंट। बट
लेंस में एक छोटी सी प्रॉब्लम है. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द लेंस? द प्रॉब्लम इन द लेंस इज कि इट कंटेन्स टू स्फेरिकल सरफेसेस. तो डेफिनेटली अगर दो सरफेसेस हैं तो दो बार रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे. ओके, जैसे आपने यहाँ देखा और कनकेव में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो दो बार रिफ्लेक्शन होता है. और दो सरफेस है तो दोनों ही सरफेसेस का अपना अपना सेंटर है, इसलिए आपके पास दो फोकस होंगे, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ. ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे. तो हम जा रहे थे पैरेलल, और पैरेलल होते हुए लाइट एक पॉइंट पे मीट करी, कन्वर्ज होने के बाद, और उस पॉइंट को क्या बुलाते हैं? फोकस पॉइंट. तो अगर हम लोग फोकस की डेफिनेशन ले तो व्हाट इज द फोकस पॉइंट? इट इज द पॉइंट where light either meet or appears to be meet when it fall parallelly to the lens. यानी जब भी लाइट लेंस पर पैरेलली फॉल होगी तो उसके बाद वो लाइट या तो एक्चुअली मीट करेगी किसी भी पॉइंट पे, या फिर अगर आपको मैं एक बार साइड में कनकेव का और दिखा दूं डायग्राम. अगर हम कनकेव को देखें तो कनकेव में क्या होता है? हमारे पास लाइट आ रही है पैरेलल. ठीक है, ये उसे डाइवर्ज करेगा थोड़ी सी, और ये इसे और भी डाइवर्ज करेगा. अब देखो इसके पास वही वाली बात है, इसके पास भी दो सरफेस है तो दो फोकस है, बट इसकी लाइट कभी भी राइट वाले फोकस पे तो जाएगी नहीं, ये राइट का फोकस हो गया फ्लैश, तो इसकी लाइट हमेशा लेफ्ट साइड वाले फोकस पे अपीयर टू बी मीट होगी. क्या होगी? अपीयर टू बी मीट, क्योंकि ये कन्वर्जिंग था तो यहाँ मीट की एफ डैश पे, यहाँ पे एफ पे कुछ नहीं हुआ, बट इसकी वाली लेफ्ट वाले फोकस पे अपीयर टू बी मीट होती है. ओके, दैट्स व्हाई जब भी लाइट पैरेलल लाइट रे किसी भी पॉइंट पे या तो मीट करें या अपीयर टू बी मीट करें, उस पॉइंट को क्या बुलाते हैं? फोकस पॉइंट. और उस पॉइंट की लेंथ को आप लोग क्या बुलाओगे? फोकल लेंथ. उसे क्या बुलाओगे? फोकल लेंथ. एंड corresponding लेंथ फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से लेंथ को क्या बुलाओगे? इट वुड नोन एज फोकल लेंथ. ओके, उस लेंथ को आप क्या बुलाएंगे? फोकल लेंथ. उसका सिंबल फिर वही रहेगा एफ. ओके, तो अगर आपकी फोकल लेंथ राइट की तरफ है तो वही साइन कन्वेंशन के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, बट फिर भी आपने थोड़ा सा समझा हुआ है कि राइट साइड के डिस्टेंस को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को नेगेटिव ट्रीट करते हैं, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो अब ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आया कि जब भी लाइट या तो पैरेलली कन्वेक्स पे फॉल हो या कनकेव पे फॉल, तो किसी पे भी लाइट अगर फॉल होती है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग फोकस को निकाल रहे हैं, तो लाइट पैरेलली आनी चाहिए. तो पैरेलल आने के बाद लाइट या तो मीट करे या अपीयर टू बी मीट करे किसी भी पॉइंट को, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बुलाते हैं, और उसकी जो ऑप्टिकल सेंटर से जो लेंथ होगी वो हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी. क्लियर है? जब वो कन्वेक्स है चाहे कनकेव. साइन के बारे में बाद में बात करें. तो इस फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला कि भाई वो लाइट को कहाँ पे कन्वर्ज करेगा. अगर कन्वेक्स हुआ तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, फोकस कहाँ पे, और अगर डाइवर्ज हुआ तो कितना डाइवर्ज करेगा वो भी फोकस डिसाइड करेगा. अगर फोकस दूर हो, अगर फोकस यहाँ होता तो डाइवर्ज कम करता, फोकस जितना पास होगा डाइवर्ज उतना ही ज्यादा करेगा. यहाँ पे भी ये फोकस जितना पास होगा कन्वर्ज उतना ज्यादा कर रहा है, उतना ज्यादा कन्वर्ज यानी समेटने की कोशिश कर रहा है. फोकस जितना दूर होगा कन्वर्ज उतना ही कम हो रहा है. तो यानी फोकल लेंथ आपकी हमेशा डिसाइड करती है कि आप कितना कन्वर्ज करते हो या डाइवर्ज करते हो. ओके, तो यानी f को निकालना बहुत जरूरी है. तो फॉर्मूला किसका है? f का नहीं है यहाँ पे फॉर्मूला.
फॉर्मूला किसका है? 1/f का फॉर्मूला है, 1/f। तो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू μg by μa। μg क्या है? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और μa क्या है? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग एयर, जो हमारे चारों तरफ। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। ओके, ये डिनोमिनेटर में आपस में -1 अलग से है, इनटू 2/r, 2/r, where r का मतलब तो आप जानते ही हो, r means radius of curvature। r का मतलब क्या है? radius of curvature। Okay, that's why this is the formula for this lens। ये किसका फॉर्मूला है? ये कन्वेक्स की फोकल लेंथ का फॉर्मूला। वैसे तो ये जनरली सबके लिए ही फॉर्मूला है, बट ये जनरली कन्वेक्स का हो गया। अब अगर मैं साइड में कनकेव का और लिख दूं तो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μg by μa। मान लेते हैं इसके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी g है और इसके एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μa है, तो μg -1 -2/r। तो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? μg by a -1 -2/r। माइनस साइन क्योंकि वो डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है इसका मतलब उसकी जो लाइट रे है वो लेफ्ट वाले फोकस पे अपीयर टू बी मीट हो, और अगर लेफ्ट वाले पे जाती है तो नेगेटिव है, बट इसकी राइट वाले फोकस पे मीट होती है, बट इसलिए ये पॉजिटिव पे चलेगा। तो दीज आर कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी वो फॉर्मूले जो फोकल लेंथ को बना के देते हैं। और ये आपके एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट इन द पार्ट ऑफ द सीबीएसई यानी एनसीईआरटी में नहीं अवेलेबल है, बट एनटीएससी के लिए हमें इन्हें डील्स करना पड़ेगा। सो प्लीज एवरीवन पार्ट को देखिए। फोकस पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां पे लाइट आइदर या तो मीट करे या अपीयर टू बी मीट करे अगर वो पैरेलली फॉल हो रही है लेंस पे, ओके, और उसकी जो लेंथ होगी ऑप्टिकल सेंटर से उसे फोकल लेंथ होगी। हमने कन्वेक्स और कनकेव का कन्वर्ज क्यों करता है, डाइवर्ज क्यों करता है वो देखा प्रॉपर बड़े डायग्राम में। अब तो बस एक ओवरव्यू बनाया था कि अगर पैरेलल लाइन हो, ये आपका कन्वेक्स का फॉर्मूला है 1/f = μg by a -1 2/r, और कनकेव के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? μg by a -1, ये तो सेम है, बस यहाँ पे -2/r आएगा। गॉट दैट पॉइंट? तो इस बात को प्लीज सब ध्यान रखेंगे और समझ के भी रखेंगे। तो ये हमारा कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस, और ये हमारा कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। गॉट? प्लीज note it down the formula for the lens maker for both the formulas, for both the lenses, दोनों lenses के लिए प्लीज नोट करेंगे। Got it? Okay. Now, अब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेंगी, आगे जाके हेल्प भी करने वाली है और बहुत सारे पॉइंट्स भी सिखाएंगे। तो ये हमारे कन्वेक्स का फॉर्मूला और ये हमारे कनकेव का। तो चलिए दोनों लेंसेस को 1 by 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। डिटेल में मतलब उनके बिहेवियर को देखते हैं। तो एक बार ध्यान देंगे। तो चलिए मैं आपके साथ सबसे पहले इसके बिहेवियर को पढ़ूं, बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस को पढ़ते हैं। ओके, कन्वेक्स लेंस ये रहा कन्वेक्स लेंस, जिसका लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? 1/f = ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सराउंडिंग, तो चलिए सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं L लिख देता हूं। ओके, -1 2/r। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे μa क्यों नहीं लिखा? μa का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो मैं यहाँ पे एयर की जगह कुछ और मीडियम भी लाना चाहता हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल देते हैं। ओके, तो अब केसेस पे ध्यान देंगे। केस नंबर 1 देखो, इफ μg is greater than μl,
मतलब समझ लो, म्यू जी मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू एल का मतलब सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग। और कई बार आप बोल सकते हो कि एक लिक्विड डाल दिया आपने, यानी आपने लेंस लिया और लेंस को उठा के ना अपने पानी में डाल दिया, पानी अब आपका सराउंडिंग बन गया। पहले हमारा सराउंडिंग कौन था, एयर हमारा सराउंडिंग था, अब हमारा वाटर लिक्विड कुछ भी हो सकता है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कांच जिससे वो लेंस बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे सराउंडिंग वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। अगर ये केस हो तो समझो बात। तो देखिए ये क्या है, 2 आर, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये टर्म तो कैसी है, पॉजिटिव। अब आ जाओ इस टर्म पे, म्यू जी म्यू एल से बड़ा है, म्यू जी म्यू एल से बड़ा है। तो अगर म्यू जी म्यू एल से बड़ा है तो म्यू जी बाय म्यू एल ग्रेटर देन 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। और अगर ये आंसर 1 से बड़ा है तो एक से ज्यादा नंबर है, इसमें से 1 को माइनस करो। तो अगर आप लोग ऐसे करते हो तो म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो इस बात को कि भाई सर ये तो पॉजिटिव है। अब देखो हमने क्या किया, उसे उठा के लेंस को पिक करके आपने उसे एयर से हटा के एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी ग्लास से छोटा ही है। और अगर ऐसा है तो ये वाला जो टर्म है ये लेस ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि म्यू जी बड़ा है और म्यू एल छोटा है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर ये टर्म पॉजिटिव आई और ये भी कैसी थी, पॉजिटिव, तो हमारा फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसा, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब क्या है, पॉजिटिव फोकल लेंथ का मीन ये है कि अगर आप उस लेंस से लाइट पास करवाओगे तो वो कौन से वाले फोकस पे जाके मीट करेगी, पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव माने लेफ्ट या राइट, पॉजिटिव माने राइट, वो राइट वाले फोकस पे जाके मीट करेगी। और अगर लाइट राइट वाले फोकस पे, राइट साइड वाले फोकस पे जाके मीट करता है तो वो कन्वर्जिंग नेचर है या डाइवर्जिंग नेचर है, वो कैसा नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर है। तो एक बार इसको डायग्राम बना के देख लें। तो डायग्राम क्या होगा कि अगर हमारे पास एक लेंस है और कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, अंदर म्यू जी बाहर म्यू एल, बट हमने बाहर का मीडियम ऐसा रखा है जो अभी भी ग्लास से छोटा है यानी कम है। और ऐसे केस में फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है इसका मतलब आप राइट साइड में जाके मीट करेंगे। और अगर आप राइट वाले फोकस पे मीट करोगे, लेफ्ट में भी है, लेफ्ट में भी फोकस है बट लेफ्ट पे नहीं जा रहे क्योंकि फोकस पॉजिटिव आया, और इसका मतलब आप कन्वर्जिंग नेचर के। तो कन्वेक्स लेंस, सीखने वाली बात क्या है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग कब होगा, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। क्लियर दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। क्लियर है, ओके। अब आइए बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड केस, केस नंबर 2। यही लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बट इस बार इसे उठा के आप लोगों ने एक ऐसे लिक्विड में रख दिया, एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिसमें सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और ग्लास का कम है। इस बार बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया और अंदर का कम। चलो इसमें देखते हैं, ये टर्म तो कैसी है, पॉजिटिव। देखो ये पूरा फॉर्मूला कन्वेक्स का ही था तो हर बार कन्वेक्स के ही लगाएंगे क्योंकि कन्वेक्स ही पढ़ रहे हैं। तो ये वाला टर्म कैसा है आपका, ये टर्म कैसा है, पॉजिटिव है। अब अगर ये टर्म पॉजिटिव है आपकी, है ना पॉजिटिव, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो इस पे आ जाओ। अब अगर म्यू एल बड़ा है, म्यू एल ग्रेटर है, तो बताइए म्यू जी बाय म्यू एल कैसा हो,
इस बार डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर लेस देन 1 आएगा। और अगर ये टर्म लेस देन 1 आती है तो बताइए म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1 ये टर्म कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? ये नेगेटिव होगी। और अगर ये टर्म नेगेटिव आई, ये टर्म कैसी थी? पॉजिटिव, और ये क्या आ रही है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आ रही है? क्योंकि म्यू एल म्यू जी से बड़ा है। और अगर ऐसा है तो हमारा f कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब देखो ये सरप्राइजिंग वाली बात है कि अब तक क्या किया, मैंने आपको एक वर्ड बोला था ना, अभी के लिए कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। मैंने आपको बोला था अभी के लिए कन्वेक्स कन्वर्जिंग है, मैंने कहा था अभी के लिए। क्यों? अब कहानी पलट गई। फोकल लेंथ कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। फोकल लेंथ नेगेटिव आने का मतलब क्या है? एक बार डायग्राम को देखें। फोकल लेंथ नेगेटिव आने का मतलब है कि लाइट पैरेलल आ रही है, देखो वही लेंस है, बट कंडीशन क्या बदली? कंडीशन ये बदली कि आपने सराउंडिंग में एक ऐसा मीडियम डाल दिया, एक ऐसा लिक्विड डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ही ज्यादा है, और ऐसे वाले केस में f नेगेटिव आ रहा है। एंड व्हेनेवर द फोकल लेंथ इज नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो राइट वाले नहीं लेफ्ट वाले फोकस को मीट करेगी। बट लेफ्ट पे सीधी तो नहीं आ सकती क्योंकि ये कोई रिफ्लेक्शन थोड़ी है, तो वो अपीयर टू बी मीट करेगी लेफ्ट वाले पे। और जब वो लेफ्ट वाले पे अपीयर टू बी मीट करेगी तो नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि जब भी हम डाइवर्ज करेंगे तो हम हमेशा लेफ्ट वाले फोकस पे अपीयर टू बी मीट करेंगे, और जब भी हम कन्वर्ज करेंगे तो वैसी बात है राइट पे। तो हमारा फोकल लेंथ कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो ये कैसा नेचर हुआ? डाइवर्जिंग। है ना इंटरेस्टिंग बात? और बिल्कुल अलग चीज जो एनसीईआरटी से हटके, क्योंकि देखो सीबीएसई एनसीईआरटी में आप कन्वेक्स को हमेशा ये बोलते हो कन्वर्जिंग हमेशा, बट उसके पीछे एक हिडन सीक्रेट है। वो क्या? कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग तभी है जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है। और एनसीईआरटी में ज्यादातर यही है कि हम ग्लास को हमेशा एयर में रखते हैं और एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, यानी हमारी पूरी एनसीईआरटी बुक में हम हमेशा इसी कंडीशन पे रखते हैं। बट एनटीएससी इसके बियॉन्ड सोचता है थोड़ा और। तो एनटीएससी ये पूछ सकता है कि अगर बाहर का ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि अगर लेंस वही है, लेंस कन्वेक्स ही है, बट कन्वेक्स लेंस डाइवर्ज बिहेव कर सकता है। ये बात याद रखो। और अब मत रखो कि कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा, ये मत रखिए। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी होगा और कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी होगा, बट कब कन्वर्जिंग होगा वो आपको देखना है, और कब डाइवर्जिंग होगा ये भी आपको देखना है। क्लियर है पॉइंट? डन है? ओके। एक और थर्ड केस बनाते हैं, शायद कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा। पहले ग्लास को ज्यादा रखा, फिर लिक्विड को ज्यादा रखा, एक एक की बारी आ गई। अब लास्ट केस क्या? जब दोनों ही बराबर हो जाए। क्या हो जाए? दोनों बराबर। यानी आप लोगों ने लेंस को एक ऐसे मीडियम में रख दिया जहां पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आपने उसे एक ऐसे लिक्विड में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एग्जैक्टली उतना ही है। तो ऐसे में क्या होगा? तो फिर वही, ये टर्म तो पॉजिटिव ही है क्योंकि ये तो r माने रेडियस। तो जब आप किसी भी लेंस को, बात सुनिए, जब आप किसी भी लेंस को मीडियम में रख रहे हो, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी बराबर वाले में, उसका रेडियस थोड़ी बदलेगा, यानी शेप थोड़ी बदलेगा, वो तो उतना ही रहेगा। तो ये तो पॉजिटिव है। अब बताओ, अगर म्यू जी म्यू एल के बराबर है तो म्यू जी बाय म्यू एल 1 होगा, एग्जैक्टली 1, क्योंकि दोनों इक्वल है। और अगर ये है तो म्यू जी बाय म्यू एल -1 कितना होगा? 0, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 आया, 1 - 1
जीरो। तो पहले ये पॉजिटिव आ रहा था, फिर नेगेटिव आ रहा था। अब बात सुनिए, ये वाली टर्म जीरो आई। अब ये वाली टर्म जीरो है तो क्या आया जीरो? 1/f जीरो आया। क्या जीरो आया? 1/f, नॉट दी f, क्योंकि ये 1/f का फॉर्मूला। यहां तो हम केवल साइन देख रहे थे, वैल्यू नहीं निकाल रहे थे। अब जीरो का तो कोई साइन नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैल्यू निकालते हैं। तो 1/f जीरो, तो f क्या आएगा? इनफाइनाइट। ऑब्वियस सी बात है, जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1/f जीरो है तो f इज इक्वल टू 1/0 एंड समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो नॉट डिफाइंड, यानी इंफिनिटी। यानी फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट है जहां पे लाइट या तो मीट करेगी या अपीयर टू बी मीट करेगी। तो तीसरे केस में बताओ, एक पैरेलल लाइट आ रही है, कहां मीट करनी चाहिए उसे? तीसरे केस के अकॉर्डिंग उसे कहां मीट करना चाहिए? उसे इंफिनिटी पे मीट करना चाहिए। और इंफिनिटी पे मीट करने का मतलब है लाइट जैसी आई थी वैसी की वैसी। कहां मीट करना चाहिए? इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी कहां है? पता नहीं सर। तो कहां मीट करेगी? सर कहीं पे मीट नहीं करेगी, जैसी आई थी वैसी की वैसी, सीधी की सीधी चली जाएगी। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? नो कन्वर्जेंस। ओके, तो आपके पास नो कन्वर्जेंस एंड नो डाइवर्जेंस। ना ही कन्वर्ज हुई, ना ही लाइट डाइवर्ज हुई। यानी इस कंडीशन को हम बुलाएंगे लेंस डिसअपियर कंडीशन। क्या बुलाएंगे? कि लेंस डिसअपियर हो चुका है, गायब हो गया। कैसे? समझिए इस बात को। समटाइम्स आप लोगों ने या तो पर्सनली फील किया हो या कभी किसी को देखा हो, माइट भी शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे जब हम मॉल्स में जाते हैं या किसी ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं जहां पे आपके डोर्स या पैनल्स जो हैं पूरे के पूरे वो ग्लास यानी कांच के बने हुए हैं। इमेजिन करो, तो आप बीएमजी में जाते हैं, किसी और जगह पे जाते हैं, वहां पे आपका पूरा पैनल कांच का बना हुआ है, डोर, वो पूरा दरवाजा। ओके, कई बार दीवारें भी वो बना देते हैं ट्रांसपेरेंट ताकि शो अच्छा हो। अब ऐसे वाले केस में कई बार आपने देखा भी होगा या खुद पे कभी हुआ हो या फिर आपने कभी सुना हो, समटाइम्स ऐसा होता है कि डोर क्लोज है और कोई एक कैंडिडेट है या आप खुद हो, जब आप चल रहे हो, आप चलते गए, ओके, आप बिल्कुल ध्यान से तो नहीं देख रहे, बट आप रैंडमली चल रहे हो, तो आप चारों तरफ देख रहे हो, ऑब्जर्वेटरी है, तो आप चारों तरफ चीजों को देखते जा रहे हो। बट चलते चलते जैसे ही आप डोर पे पहुंचे, डोर क्लोज था, बट आपके माइंड ने उसे डिटेक्ट नहीं किया, आपके माइंड ने उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, उसे देखा ही नहीं कि डोर बंद है, कांच का है, और आप चलते चलते आपको ये लग रहा है कि डोर ओपन है और आप सीधे चलते जा रहे हो, डोर एक्चुअल में क्लोज था और जाके बैंग हुआ। कई बार सुना होगा ना कि हमें दरवाजा दिखाई नहीं दिया कांच का, कई बार ऐसा लगता है कि फील ही नहीं होता कि इस चीज के दरवाजा वो भी है, विंडो है या कुछ और भी चीज है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ओपेक, इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि वो इस कंडीशन में आ जाती है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज हमें जब ऑब्जर्व होगी, जब उसके अंदर से पास होने वाली लाइट कोई डेविएशन शो करे, तो आपको किसी भी चीज के होने का पता तब चलता है जब उसकी वजह से कोई चेंज आए। जैसे आपको क्या मालूम कि एयर ब्लो कर रहा है या हवा चल रही है बाहर, क्यों? आप उसकी वजह से चीजों में चेंज ऑब्जर्व करने का देखते हो। ओके, एयर की वजह से लीव्स ऑफ द ट्री हिल रहे हैं, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, आपकी बॉडी को सेंस हो रहा है। तो अगर कोई चेंज आता है, टेम्परेचर में गिरावट आ रही है, कुछ और अगर कोई चेंज ऑब्जर्व होता है, तब तो आप कहेंगे कि वो चीज प्रेजेंट है, क्योंकि आपका माइंड उसे डिटेक्ट करेगा। बट अगर पत्ते ही नहीं हिल रहे, मान लीजिए आपको कोई फील ही नहीं हो रहा, समटाइम्स लोकल एरिया में बोलते ना कि ह्यूमस बहुत ज्यादा, ह्यूमस हिंदी वर्ड का है, ह्यूमस बहुत ज्यादा, हवा तो चल ही नहीं रही है, तो टेक्निकली ये तो गलत है ना, हवा क्यों नहीं चल रही? एयर तो हर जगह प्रेजेंट और ब्लो भी कर रही है, एयर रुक कैसे सकती है? ये तो आपको मालूम है, एयर गैसेस पार्टिकल है और गैस पार्टिकल तो रेंडमली मूव करते रहते हैं। तो यानी पॉइंट क्या हुआ कि वो एक ऐसी कंडीशन आई जहां पे एयर का स्पीड, फ्लो करने का स्पीड इतना स्लो था
कि जो सराउंडिंग है, जैसे ट्रीज के लीव्स हैं, कोई और है, पेपर है, कोई भी अदर चीज है, फ्लैग है, उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं आया, मतलब वो वैसे ही थे। अभी भी एयर फ्लो कर रही है बट स्पीड इतना स्लो है कि आपके माइंड को वो जो चेंजेस हैं वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहे, और आपका माइंड आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, एयर चल ही नहीं रही है। ये हमारा सेंस कहलाएगा। अब सीधी सी बात यहाँ पे भी यही है, जब लाइट पैरेलल आ रही थी तो पहले लाइट पैरेलल आ रही थी, लेंस से पास हुई तो कन्वर्ज हो गई, तो लाइट ने अपना पाथ चेंज कर दिया, तो डिफरेंस दिखा। डिफरेंस दिखा तो आपको पता चलेगा हाँ सर ये लेंस है। ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसी चीज है जिसमें से लाइट पास होके कन्वर्ज हो रही है, तो आप उसे ऑब्जेक्ट मानेंगे, हाँ सर ये लेंस है, आपको फील होगा। जब आपने उसे डेंसर मीडियम में रखा, यानी बाहर डेंसर है, मतलब बाहर डेंसर है, अंदर वाला रेयर है, कन्वेक्स, यानी बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, अंदर का कम है, ऐसे वाले केस में लाइट ने अपने आप को डाइवर्ज किया, तो कन्वेक्स लेंस ही डाइवर्जिंग बिहेव किया, तो ये भी डिटेक्ट हुआ क्योंकि चेंज आया। बट इस वाले केस में लाइट के पाथ में कोई चेंज ही नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ गई इन्फिनिटी, और अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट गया तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जैसी आई थी वैसी की वैसी स्ट्रेट जा रही है। जब लाइट स्ट्रेट ही जा रही है इसका मतलब आपको लाइट के पाथ में कोई चेंज ही महसूस नहीं हुआ, जैसी आ रही थी वैसी वैसी कांच से आर पार आ गई, जैसे सीधी आ रही थी अभी भी सीधी आ गई। तो आपका माइंड क्या करेगा कि कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई डिटेक्शन ही नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं चला कि पाथ चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो आपका माइंड कहेगा कि अगर लाइट का पाथ ही चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, लाइट ने अपने रास्ते को बदला ही नहीं, इसका मतलब वो सारी चीजें एक ही है। मतलब वैसे अंदर ग्लास है, बाहर लिक्विड है, तो देखो मीडियम तो अलग अलग है, बट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना लिक्विड का है, ओके, और हो सकता है। और अगर दोनों सेम है तो लाइट वाइज आप दोनों का एक ही मीडियम है, वैसे तो मीडियम अलग है, सॉलिड एंड लिक्विड है, बट लाइट के अकॉर्डिंग आप लोगों का ऑप्टिकल मीडियम एक ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बाहर था उतना ही ग्लास का है, तो लाइट सीधी की सीधी आई, और जब वो लाइट सीधी की सीधी आई तो आपको एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ चेंज हुआ, और आपका माइंड क्या कहेगा वहां पे कुछ नहीं है। इसीलिए हम इस कंडीशन को डिसअपीयर कंडीशन बुलाते हैं। यानी अगर लेंस को कन्वेक्स लेंस को आप एक ऐसे मीडियम में डाल दें जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली उतना ही है जितना सराउंडिंग का है, तो वो लेंस डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हमें दिखेगा ही नहीं, और उस कंडीशन को क्या बुलाएंगे, डिसअपीयर। और डिसअपीयर तभी होता है जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट। तो दिस इज कंप्लीटली फॉर एनटीएससी कि हमारा कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी बिहेव कर सकता है, डाइवर्जिंग भी बिहेव कर सकता है, और गायब भी हो सकता है। गॉट दैट पॉइंट? ओके, नाउ विद दिस क्विक नोट, हमने कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर पढ़ा, चलिए जल्दी से कनकेव का, प्लीज नोट इट डाउन दैट ऑल द बिहेवियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कनकेव लेंस बिहेवियर। ठीक है, चलिए कनकेव के बिहेवियर को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिहेवियर ऑफ कनकेव। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ कनकेव। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है? तो कनकेव, सॉरी, लेंस। ओके, नाउ यू ऑल नो दैट फॉर कनकेव लेंस एफ कनकेव का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय सराउंडिंग -1 -2 बाय r। ओके, अगर सराउंडिंग एयर है तो आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिख सकते हो। ओके, तो चलिए काम करें। सो केस नंबर 1 क्या बनेगा? केस 1, व्हेन μg इज ग्रेटर देन μ, जब आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, जैसे कन्वेक्स में किया, ठीक है? तो करते हैं। तो ये हमारा कनकेव लेंस, इस बार ये जो सराउंडिंग में लिक्विड है ये कम है और अंदर का ज्यादा है। तो चलिए देखो ये कैसी टर्म है, ये साइन, ये जो हमारा -2/r है, ये तो कैसा है? नेगेटिव है। ओके, अब इस पे देखते हैं। तो μg/μl, μg बड़ा है भाई इस बार,
यानी इस बार न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो अगर ये है तो म्यू जी बाय म्यू एल ग्रेटर देन 1 होगा एज यूजुअल। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1। ये आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है, और अगर 1 से बड़े नंबर में से अगर 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। बट ये पॉजिटिव आया, बट ये वाली टर्म कैसी थी? नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब राइट वाली या लेफ्ट वाली? लेफ्ट वाली, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइन को नेगेटिव लेते हैं। यानी अगर लाइट रे पैरेलल आएंगी तो वो लेफ्ट वाली फोकल लेंथ से जाएगी। कब जाएगी लेफ्ट वाली से? जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा होगा। इसका मतलब उसे कन्वर्ज होना पड़ेगा या डाइवर्ज होना पड़ेगा? उसे क्या होना पड़ेगा? डाइवर्ज होना पड़ेगा। सो क्या चीज सीखी कि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा है। बट इसी कंडीशन में जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा है तो कन्वेक्स कन्वर्जिंग बिहेव करता है। गॉट इट? चलिए केस 2 बनाते हैं जल्दी से। केस 2 क्या होना चाहिए? ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन द लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बार ग्लास का कम है और सराउंडिंग का ज्यादा है। तो एक बार देखें इसको। चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं काम करना। तो इस बार म्यू एल ज्यादा है, ये वाली टर्म तो नेगेटिव है, म्यू एल ज्यादा है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ग्लास का कम है, यानी इस बार डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है। तो म्यू जी बाय म्यू एल क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और अगर म्यू जी बाय म्यू एल लेस देन 1 है तो म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1। अगर ये टर्म 1 से छोटी है और 1 से छोटी टर्म में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो ये वाली टर्म क्या आई? नेगेटिव। और ये वाली टर्म पहले से क्या थी? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है, पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो लेफ्ट या राइट कहां जाएगी? वो जाएगी राइट वाले फोकस से। और राइट वाले फोकस से क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। और अगर राइट वाले फोकस से पास होना है तो उसके लिए आपको कन्वर्ज होना पड़ेगा या डाइवर्ज होना पड़ेगा? कन्वर्ज। इसलिए ये कन्वर्जिंग नेचर का होगा। इट वुड बी द नेचर ऑफ कन्वर्जिंग, यानी कनकेव लेंस कन्वर्जिंग हो सकता है। कब? जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा है। बट इसी कंडीशन में जब लिक्विड यानी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा था, इसी हालात में कन्वेक्स था वो डाइवर्जिंग था, बट कनकेव कन्वर्जिंग है। इस कंडीशन में कन्वेक्स कन्वर्जिंग था बट कनकेव डाइवर्जिंग। चलिए लास्ट केस बनाते हैं। व्हेन म्यू जी इज इक्वल टू म्यू एल। अगर म्यू जी म्यू एल के बराबर है तो जल्दी करो। म्यू जी बाय म्यू एल इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1 क्या आएगा? 0। ये 0 आया, इसका मतलब 1 बाय एफ 0, इसका मतलब फोकल लेंथ फिर से इनफाइनाइट। फिर से इनफाइनाइट का मतलब ये हमारा कन्वेक्स लेंस, हम लोगों ने कनकेव लेंस, हम लोगों ने कनकेव लेंस को फिर से एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली वही है जो ग्लास का है। और अगर ऐसा है तो लाइट रे कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। तो कहां पे जाके मीट करनी चाहिए? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी माने पता नहीं सर कहां मीट करेंगी, कभी नहीं करेंगे, पैरेलल ही जाएगी। इसका मतलब लाइट में फिर से कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब ये फिर से कौन सी कंडीशन हो गई? डिसअपीयर वाली कंडीशन। यानी आइदर कनकेव लेंस और आइदर कन्वेक्स लेंस। अगर डिसअपीयर करना है तो लेंस को हमेशा एक ऐसे मीडियम में पुट कर दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। बट कॉन्सेप्ट सारे ही हैं कि कौन सा लेंस कब कन्वर्जिंग करेगा,
कब डाइवर्जिंग करेगा और कब गायब हो जाएगा, ये आपको पढ़ना जरूरी है। सो टुडे वी स्टडीड अबाउट द लेंस। तो देखो लेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है, ये सीबीएसई में भी आता है, बट वो जो लेंस मेकर के बाद हमने पढ़े वो हमारे एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इन टॉपिक्स ने हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। क्या कि हम लोग हमेशा ज्यादातर कन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ज्यादातर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कब होता है? क्यों? क्योंकि ज्यादातर बाहर एयर ही होती है, इसलिए कन्वेक्स कन्वर्जिंग रहता है और कनकेव डाइवर्जिंग रहता है। बट ये चीज बदली जा सकती है अगर आप सराउंडिंग के मीडियम के साथ छेड़खानी करें तो। सो विद दैट नोट एंड विद दिस पॉइंट, दिस इज गोल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो आज हमने लेंस का इंट्रोडक्शन किया, लेंस के मेकर और बिहेवियर ऑफ द लेंसेस को। सो प्लीज सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन कीजिए, समझिए। वीडियो में अगर कोई डाउट है तो इसे वंस ट्वाइस थ्राइस एक बार चेक कीजिए, एक बार बार देखिए, और जैसे ये कंप्लीट हो जाए अपने डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बारे में और पढ़ेंगे और चीजें के बारे में बात करेंगे एंड वी विल मीट सून। So till then, please complete it and ask your doubt. Thank you very much.